So in this video we shall discuss circular flow of income in two sector model. In economy there are more sectors, at least 4 sectors, but for simplicity's sake, for the sake of understanding, we introduce more sectors after discussing two sector model. So to begin with, the first is, before you start any work, household sector is always there. So it is to be written first, household sector, and the other sector is business sector, that is business sector. So from householders have the possession of factors of production: land, labor, capital and entrepreneurship. All these come from the household sector. So they provide these 4 services. They go from household sector to the business sector. So we make here an arrow. So these are factor services. Factor services, namely land, labor, capital, entrepreneurship. So ये जो है, अब जो फैक्टर्स हैं, जो साधन हैं, वो अपनी सेवाएं देंगे, ऑफर करेंगे टू द बिजनेस सेक्टर. तो बिजनेस सेक्टर इनको यूज़ करके इट विल प्रोड्यूस एन आउटपुट. सो इसकी जो प्रोडक्शन होगी वो जो है वो वही प्रोड्यूस करेगा गुड्स एंड सर्विसेज विच आर रिक्वायर्ड by the household sector, because any production is carried out keeping in mind the demand for it. If the demand is not there, production is not carried out. So the goods and services produced in business sector, they will be demanded by the household sector. So it means goods and services, they move from business sector towards household sector. So we make the arrow here depicting where it reaches. So just see, as our clock, the hands in a clock, they move in a clockwise direction. Same way, this flow is also clockwise. So it is the clockwise flow is called the real flow, because the real thing, these are the physical factors moving for production to the business sector, and goods and services, again this is production, it is moving. After getting completed here, it moves to the household sector. So this is the real flow in production process, how the things move, how the factors move and how the production moves. These are both physical entities. So it means physical entities refer to real flow. ये वास्तविक हैं, इनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, और जो है लैंड को आप देख सकते हो कि ये लैंड है, जो है लेबर को देखने पर आपको पता है कि वो काम हो रहा है. तो दीज आर समथिंग द थिंग्स which really without which production can't be there.
So this is because they are the real participants, and this is the production is the output. So factors and output, the flow which refers to factors and production output, it is called real flow. But to facilitate this flow, if we introduce money, if we introduce the financial sector, so financial sector itself doesn't participate in the process of production, it just makes the production process easier. The payments and the receipts can be made through money, financial transactions. So if now this will be a corresponding flow, reciprocal flow, रेसिप्रोकल टू द रियल फ्लो। जो हमारा यह वास्तविक प्रवाह है, इस के उलट एक फाइनेंशियल प्रवाह होगा जिसको हम मॉनेटरी फ्लो कहेंगे, मनी फ्लो कहेंगे। वो इसके ये क्लॉकवाइज हुआ है, वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर फैक्टर सर्विसेज इधर बिजनेस सेक्टर को गई हैं तो वो इनको इनका रिवॉर्ड दे देंगे इन मनी टर्म्स। तो जो मनी टर्म्स में रिवॉर्ड जाएगा, इट विल गो बैक टू द हाउस होल्ड सेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, मनी पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज। जो सेवाएं साधनों ने अपनी प्रदान की हैं, उनके लिए जो उनको रिवॉर्ड मिला है, जो उनको आय प्राप्त हुई है, वो मनी फॉर्म में है, तो वो उन्हीं के पास वापस चले जाएगी। तो रियल फ्लो हमारी क्लॉकवाइज थी, तो जो हमारी मनी फ्लो है वो उसके रेसिप्रोकल होगी, उसके कोरस्पॉन्डिंग होगी। इसी की वजह से ये पेमेंट हो रही है, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज होगी। And similarly, when household buys goods and services from the business sector, it makes payment in money to the business sector. तो ये आपकी payment for goods and services, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, मनी फ्लो। Inner flow is real flow, that is clockwise, and outer flow is anti-clockwise and is called money flow. इसको मौद्रिक प्रवाह कहेंगे हिंदी में। और इसमें ये है कि इसमें हमने ये अज्यूम किया है, जब तक हम ये कह रहे हैं, इसमें मैंने आपको कोई सेविंग्स के बारे में रिफर नहीं किया है, तो हमारी अजम्पशन है कि जो इनको ये मनी फॉर्म में इनकम मिली थी, इसमें से हाउस होल्ड्स ने कोई भी सेविंग नहीं की। जो इनको पैसा प्राप्त हुआ था वो सारे का सारा इन्होंने गुड्स और सर्विसेज बाय करने पे स्पेंड कर दिया। तो इस वजह से जो आपका वॉल्यूम है, जो हमारी इकोनॉमी का जो वॉल्यूम है सर्कुलर फ्लो का, उसमें रिडक्शन नहीं होगी क्योंकि हमने सेविंग्स की नहीं है। बट इन केस ये सब जो हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग्स कर लेता है, तो अगर सपोजिंग ये कहता है कि मैंने इतना कम स्पेंड किया, स्पेंडिंग जो है इसकी ये है, ये इसकी स्पेंडिंग हो गई, और इसने कहा कि मैंने सेव भी करना है। जो सेव करेगा, अगर हमें फ्लो को कम नहीं करना है, प्रोडक्शन के वॉल्यूम को कम नहीं करना है, इकोनॉमी को का स्तर जो है हमने नीचे नहीं लेके आना, तो हमें स्पेंडिंग को बरकरार रखना होगा उसी लेवल के लिए। इसी के लिए जो हमारी सेविंग्स हैं उनको अगर ये लेंड कर दिया जाता है बिजनेस सेक्टर को, वो लेंडिंग के रूप में यहाँ चली जाएंगी, और ये फाइनेंशियल सेक्टर के थ्रू होता है। अगर सीधा भी किया जाता है तो ये दोनों मिलके
इसने उस लैंडिंग से जो इसको कमी आ रही थी कि इसका सामान बिका नहीं है, तो उसके साथ ये प्रोडक्शन में लगा के जो प्रोडक्शन लेवल को बनाया रख के तो जनरेशन ऑफ इनकम को, इनकम का स्तर उसी लेवल पे मेंटेन रह सकता है, तो वो नीचे नहीं आएगा क्योंकि प्रोडक्शन बनी रहेगी। तो विद सेविंग्स भी ये हो जाता है, विदाउट सेविंग्स भी, ये इसको आपको समझ आ गया होगा। तो फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो फैसिलिटेट करता है। अगर हमने मनी इंट्रोड्यूस कर दी है तो इसी तरह से हमने शो नहीं किया, लेकिन इट कैन बी डन, तो ये टू सेक्टर मॉडल ही कहलाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर जो है हमारा, उसको जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसको हम एक सेपरेट सेक्टर कंसिडर नहीं करते हैं। तो अगर वो फाइनेंशियल सेक्टर आ भी जाता है, तो अगर सेविंग्स का कॉन्सेप्ट भी लेके आते हैं, तो सेविंग्स जो हैं उनको हम कहेंगे लीकेजेस। लीकेज क्या है कि जो हमारी फ्लो चल रही है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, अगर हम उसमें से कुछ हिस्सा निकाल लेते हैं पैसे का, तो वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका मतलब वो साइकिल पहले जितने वॉल्यूम पे नहीं चलेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, जो सेविंग्स हैं वो लीकेजेस कहलाती हैं। तो जब हम वो लैंडिंग हो जाती है तो वो इंजेक्शन बन जाता है, क्योंकि उसने फिर से इसको लैंड कर दिया। लैंडिंग इज एन इंजेक्शन एंड सेविंग इज अ लीकेज। तो इसमें से जो है, अगर हम ये टू सेक्टर मॉडल तक हम यहीं कंप्लीट करते हैं। इतना जो 3 सेक्टर 4 सेक्टर मॉडल हैं उनका मैं रेफरेंस नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। थैंक यू।